or there is a lack of proper guidance. By taking all this into consideration, we decided to provide you such a platform where you can avail the opportunities to know more about such exam. So today's webinar is actually outcome of this. Now, before we move ahead, I would like to call our respected principal, Ma'am Uma Madam, to say few words. Over to you, ma'am. Ma'am. Uma ma'am. Hello. Just now they have unmuted me. It was host control. Very good afternoon to all. Okay. Dear students, it's very nice that today we are around 140 students who have gathered here. Warm welcome to our management members, Saroja Madam, and today's guest, Sri Praveen Salunke, and my colleagues. These competitive exams are never ending, and as Sir said, it's very important. You just do anything. For example, you have done BSc Computer Science. When you join TCS, there is an examination. That is nothing but a competitive exam. You are writing BITS Pilani or any other examination. Now, as usual, we were writing online only. Now, because of this, it is again continuously, it is going to be online, where they will be having IQ questions. So these are all what that is a part of any examination, whether it is a Railway Service Commission or UPSC exam, MPSC exam or Banking Service Commission, everywhere. This type of exams are definitely there. Now I have to here tell you, I have a friend. Friend means she'll be hardly 24 years or 25 years. She is from Konkan, a small village girl. I met her in the last year in the 2020 January. She passed Banking Service Commission of Reserve Bank and she got a job. I felt that why that city students are not focusing. When a small village girl has appeared for an examination conducted by the Reserve Bank of India, a separate exam for them, and she has cleared and she got a job. She said for 6 months, it is a consolidated pay of 40,000 rupees, madam, then I will be regularized. I said, very nice. When was that advertisement? You know, the teacher's question. I asked her so many questions. Here I want to tell you, let us have some focus, concentration. What are we going to do? We don't know. Or my friend is doing that. That is not an approach. Please. Your friend may be good in maths and he may be doing something else, but you cannot do the same thing just because your friend is doing. Or you may be very, very good in language writing or doing something else, presentation, but your friend may not be. Then you are just going to join with a math student. So please, student, have your own passion, join with your own liking. Today's most important thing of this is that it is exposed to you to identify what is your liking, what is your interest, passion, and next how to get into that. If you are really interested, we will go ahead with that in the next level also. Now, I welcome you all the students for this webinar, and also I welcome today's guest, Sri Praveen Salunke sir. Over to Pramod Bosley. Thank you. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you for your inspiring words. Now, let's set the ball rolling. Let me take this opportunity to introduce briefly about today's guest speaker, Praveen Salunke sir. Praveen sir, 1 minute, just Sanjay sir, please share the screen. Yes, sir. Sir, yeah, is it visible to all? Yes. So Praveen sir, he is a professor in St. Xavier College, Mumbai. It's a very well-known college in Mumbai. He is a MA in political science from both universities. He has done double MA, Mumbai University, Pune University, in the same subject.
He's a coordinator of Arts, Humanities and Languages. He's also in charge of Model United Nations Club. He's a teacher, coordinator of Marathi Wangmay Mandal, that is a literary club. He's a nodal officer 187 Kulaba Assembly Constituency, Mumbai. He's also a subject trainer of Mumbai Division for Political Science, new syllabus for HSC Board. He's also a moderator for South Mumbai Division, and he has been Europe. He visited Europe under Indo-Italian exchange program and took interactive sessions with the students of Lunardi and Brescia, Italy. And he's also president of Mumbai Division of Political Science State Council. He's a mentor and guide to students who are aspiring for such competitive exams. So, sir, welcome you on behalf of our institute. I welcome you once again. Thank you, sir. Now, before we start, let me give some instruction to the students. Students, please see, while during any questions come to your mind, please type in the chat box. At the end, we will have an interactive session. At that time, I will bring all these questions up. Okay, and I hope that you will definitely enjoy this seminar. That you will this seminar will provide you a new directions and findings. So, thank you very much, all of you. Now, without further delay, I will turn the time over to you, sir. Praveen, sir, over to you. Thank you. Very good afternoon to one and all. Namaste to everybody. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Okay. Yeah. So I'm very thankful to NTS College for inviting me and giving me this particular opportunity to talk to the young minds. And let me start thanking to the college principal, Uma Maheshwari Madam, was so kind enough to invite me for this prestigious, practice of enlightening students. So I'm deeply thankful to you, Uma Maheshwari Madam, then Saroja Madam, Padmaja Madam, Anand Sir, my friend and your esteemed colleague, Professor Pramod Bhosle Sir. Then I'm also getting help with Sanjay Pandav Sir. Then I have my own students here, Ishika, Merishka, Ahan, Sridhar. I also have Yashodhan and all. My other colleagues, Professor Sachin Hegde from St. Xavier's College, English Department, Professor Kamlesh Kadam from Physics Department of St. Xavier's College, one of my friends and relative, Mr. Kailas Jain Sir, Rahul Jain, my brother Kiran Salunke, and all the esteemed dictees who are available here for this particular session. So I would start without further delay. Let me start sharing the screen, and my medium of instruction would be English as well as in Hindi. Some students may find it difficult, therefore I will be bilingual with the permission of the respected principal and other professors. So let me start sharing the screen. Is this visible to you all? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So today we have assembled here to talk about career through competitive examinations. So students, I would like to start by asking a question to you all. Before that, let me give you the sequence. हम आज के लेक्चर की शुरुआत किस तरह से करने वाले हैं और क्या-क्या चीजें इनमें शामिल होने वाली है, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ. So introduction to the topic कि competitive examinations क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, what are the different categories of these examinations, कौन-कौन सी agencies ये exams conduct करती है, students के लिए क्या चीजें आवश्यक है जिसकी सहायता से वो इसमें यशस्वी हो. So we have different categories.
Then students, I will also talk about the success stories. Okay, सिर्फ आपको एग्जाम के बारे में बताना, यूपीएससी है, एमपीएससी है, रेलवे के बोर्ड एग्जाम्स है, आईबीपीएस है, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन स्टूडेंट ये कैसे हासिल करें, हाउ टू अचीव दीज एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक देम. सो देयर आर सक्सेस स्टोरीज. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये अचीव किया है, और उसका सक्सेस मंत्र क्या है, how to crack these exams. So there are few tips and techniques which I have personally with the successful candidates. I would like you all to follow them and be successful in your life. At the end, as Professor Pramod sir has mentioned about interactive session, अगर आपके कुछ doubts है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हो. So let's go ahead. What is competitive examination? ये जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनकी क्या जरूरत है, why we need such examination? First of all, एक टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्स आर गिविंग यू द सक्सेसिव इवैल्यूएशन, कि अगर हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ पढ़ाई की है, तो वो कहाँ तक हमारे समझ में आई है. ओके, हाउ फार वी हैव लर्न द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, ये जानने के लिए हमें एग्जाम्स किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, और ये एग्जाम्स में अगर आपने बहुत जी तोड़ के मेहनत की है, तो आपको उसका अच्छा नतीजा मिला है. गुड रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड बाय द वन हु आर वर्किंग वेरी हार्ड. सो उसी तरह से जैसे ये स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम होती है, उसी तरह से जॉब्स पाने के लिए, और सिर्फ जॉब्स नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन वाली जॉब, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर्स वाली जॉब, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह से हमें मिलती है. So basically examinations are conducted to evaluate a person of his knowledge. Or there are different types of examinations, like qualifying for competitive exams. Qualifying exams are conducted to evaluate certain kind of knowledge or skills. They are decided as per the course. After completing a particular course or during the course, these exams are conducted. तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने कितना ज्ञान, कितना नॉलेज हासिल किया है, वो जांचने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी होती है. अगर ये एग्जाम आप क्लियर कर पाते हो, तो जैसे मैडम ने बताया कि एक विलेज में रहने वाली लड़की, ओके, उसने रिजर्व बैंक की एग्जाम कंडक्ट की है. हम तो मुंबई और सबर्ब्स में रहते हैं, ओके, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमसे कितनी नजदीक है, और फिर भी हम लोग ये एग्जाम्स के बारे में सोच नहीं पाते हैं. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमें बहुत कम होता है. तो ये एग्जाम्स आपकी सिर्फ जांच नहीं करते हैं, ये आपको मौका देते हैं देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए. So these competitive examination enables you to work in society, work for your nation, और देश सेवा से बड़ी सेवा कोई होती नहीं है. So let's move ahead. What is the situation today? आज के हालात क्या है? Employment, jobs, काम, ये जो है it is generated by the emergence of new ways of life. अभी पहले जैसे हालात नहीं है. पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनना है या पुलिस कांस्टेबल, हवलदार बनना है, तो पहले 7th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हुआ करती थी. अगर आपने 7th स्टैंडर्ड पास किया है, तो आप डेफिनेटली ये जॉब पा सकते थे. फिर उसको 10th स्टैंडर्ड किया गया, फिर उसको 12th स्टैंडर्ड किया गया कि अगर आपको सिर्फ पुलिस हवलदार या कांस्टेबल बनना है, तो मिनिमम आपको 12वीं तक की कक्षा पास होनी है, और अच्छे मार्कों से, अच्छे गुणों से पास होनी है. फिर उसमें उनकी एक टेस्ट होती है जो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस पर आधारित होती है. तो ये सिर्फ एक कांस्टेबल बनने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है. द लेवल ऑफ एजुकेशन हैज हाईली इंक्रीज. देयर आर एवरीबॉडी हु इज गेटिंग मिनिमम ग्रेजुएशन एज अ डिग्री. तो स्टूडेंट्स, अभी ये हालात कॉमन नहीं रहे, इससे और कंपटीशन बढ़ने वाली है. तो ये बहुत सही समय है. इट इज द राइट टाइम टू अचीव दीज अपॉर्चुनिटीज विद हार्ड वर्क. सर्विस सेक्टर एज द ग्रेटेस्ट
इंजन फॉर जॉब क्रिएशन। देखिए, हम कोई बिरला, अंबानी, टाटा, बजाज नहीं है, महिंद्रा नहीं है कि हम हमारे बिजनेस चलाएं, जो हेरिडिटरी बिजनेस है वो चलाएं। तो हमें एक ऑप्शन क्या होता है, एक ऑप्शन होता है हम मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करें और अच्छी जॉब पाए, फिर वो बैंक में हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने की तमन्ना हर बहुत लोगों में होती है, अच्छे साइंटिस्ट बनने की तमन्ना बहुत लोगों में होती है। उसे इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने में कुछ क्वालिटीज लानी पड़ती है। यहाँ पर स्लाइड में आप देखोगे, वहां पर लिखा है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, नॉट शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। देखो स्टूडेंट्स, जॉब की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्किल्ड, एक कौशल होना, एक कला होना और उस कैपेबिलिटी के साथ वो जॉब पाना, ये चैलेंज होता है। आज भी जॉब्स अवेलेबल है। हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, there is a acute unemployment in India. No, unemployment is not the problem. Skillful workers is the problem. जो लोगों में सिर्फ हम ग्रेजुएट होंगे और उससे ज्यादा अगर हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमें जॉब कौन देगा। यहाँ बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स भी है। आप अभी पैंडेमिक चल रहा है, शायद आप भी कोई बाहर जाता नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जब आप मान लीजिए फल फ्रूट्स सब्जी खरीदने जाते हो, जब आप अच्छे कपड़े खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो, जो भी अवेलेबल है वो ले लेते हो? नहीं, यू मेक चॉइसेस। आप चॉइस करते हो, आप सिलेक्ट करते हो कि जो भी बेस्ट है, बेस्ट फ्रूट्स है, बेस्ट वेजिटेबल्स है, वो आप लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि आप दाम दे रहे हो, आप उसके लिए प्राइस दे रहे हो। ओके, उसी तरह से अगर कोई कंपनी आपको जॉब देना चाहती है, वो आपको दाम दे रही है, तो उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए। जैसे हम अच्छे क्वालिटी के ही एप्पल्स खरीदेंगे, ओके, खराब वाले एप्पल्स हम नहीं चुनेंगे। उसी तरह से जॉब मार्केट में स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके पास डिग्री होना ये सफिशिएंट नहीं है, ये इससे ज्यादा की उम्मीद होती है। इसीलिए स्किल्ड बनो, अपने में हुनर लाओ, अपने में कुछ स्किल या कौशल लाओ, और इसीलिए आपको जॉब मिलती है। तो स्टूडेंट्स, देयर इज अ फुल कंपटीशन एवरीवेयर, हर जगह पे कंपटीशन है। ओके, और ये जो हालात है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जॉब्स बहुत कम अवेलेबल है, या बहुत कम लोगों को ये जॉब्स मिलते हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो ये जॉब हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिविल सर्विस प्रिपेयर करनी है, हमें एग्जामिनेशंस देने हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा यूपीएससी जो बीच में लिखा है, एंड देयर इज अ एम्ब्लम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आप देख सकते हो जो 4 लायन वाले हैं, 3 लायंस आपको सामने दिखते हैं, एक लायन एक पीछे होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये है सरकारी नौकरियां, ओके, जो आपको with lot of effort you have to achieve them. So there is civil service examination which is available for all of us. Every graduate is eligible for these examinations. Okay. Sanjay sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Sir, is it possible to record this particular meeting? Yes, it is already on record, sir. It is Okay, recording. okay. Yes, sir. Thank you so much. It's recorded. Yes, Yeah. sir. सो स्टूडेंट्स, वहां पे आप देखोगे IAS लिखा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे कलेक्टर होते हैं, ओके, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बाजू में वहां पर दिखा, आप देखोगे IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, ओके। IFS में और एक इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, जैसे आप डिप्लोमेट बन के दूसरे देशों में रह सकते हो, फ्रांस, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। फिर CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है, अगर आपको देश सेवा करनी है, आर्मी मिलिट्री में जाना है, तो आप ये कंबाइंड सिविल डिफेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन देयर इज NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। 12th साइंस के बाद स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन अपीयर कर सकते हैं। ये 12th साइंस के बाद शुरू होने वाले एग्जामिनेशन है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ISS एग्जामिनेशन,
जो स्टूडेंट्स कॉमर्स ग्रेजुएट है, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लेके ये एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। देन देयर आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट ACS और CAPF एग्जामिनेशन, जो CISF जो राइट साइड में आप देख सकते हो इससे इक्विवेलेंट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, जियो साइंटिस्ट सर्विसेज है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या कहना है, जॉब बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन वो हासिल करने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए। यू शुड बी केपेबल इनफ टू अचीव दीज जॉब्स, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो ये एग्जाम्स कौन लेता है? बहुत सारी एजेंसीज है स्टूडेंट्स। इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग। ये केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं ये एग्जामिनेशन लेने के। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो नॉर्मली द नोटिफिकेशन कम्स इन द मंथ ऑफ February और मार्च। इसकी एडवर्टाइज आती है, ओके, न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइज आती है, नोटिफिकेशन आता है, कब एग्जाम होने वाली है, कितने टोटल वैकेंसीज है, पोस्ट है, ये सब यहाँ पर बताया जाता है। इन अगस्त ये एग्जाम के 3 राउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ओके, जो बेसिक एग्जामिनेशन है, 200 मार्क्स की है, और इसमें सिर्फ आपको टिक करना है, ओके। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होती है, MCQs होते हैं, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन होगा मिस्टर प्रणब मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन होगा मिस्टर रामनाथ कोविंद, ओके, और फोर्थ ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, मिस्टर शरद पवार। तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है मिस्टर रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है। अभी पैंडेमिक की वजह से ये एग्जाम्स थोड़े पोस्टपोन हो गए, अदरवाइज ये इसी कैलेंडर के साथ एग्जामिनेशंस चलते हैं। देन उसके बाद उसमें क्वालिफाई राउंड होता है स्टूडेंट्स। 200 मार्क्स की एग्जाम है। क्या आप बता सकते हो क्वालिफाई कितने मार्क्स के लिए होगा? प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। 200 मार्क्स की एग्जाम में से आप कितने मार्क्स को क्वालिफाई कर पाओगे? Can you unmute and answer? You can raise your hand. I will unmute on that. Yeah, you can raise your hands. Students, you can raise your hands and you can answer. Yes, Taslima has raised her hand. Sir, 33. 33, okay. And what else? Any other participant, you can unmute yourself and answer. So 170. Okay, 170 out of okay 200 में से 170 marks. So students, ये normal exams नहीं है. ये normal. Sir, I guess 150. Okay, 150. 70. Sir, 80. Okay, thank you for your answers. Yeah. I guess for UPSC, the main exams, there are 2 preliminary papers. The second paper, we should get 33%, and for the first paper, there is a cutoff. Yes, it is divided into 2 parts, Ahan. Okay, so I'm just talking in general about the old structure of the examination. Okay, so what I wanted to say over here is, जो 100 मार्क्स की एग्जाम आप स्कूल कॉलेजेस में देते हो, जिसमें 35 मार्क्स लाना और पास हो जाना, ये बहुत सिंपल सी बात होती है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए 200 में से टॉप मेरिट लगती है। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये शायद 170 से स्टार्ट होगी। तो अगर आपको 200 में से 170 मार्क्स मिले हैं, तो आप मेन एग्जाम, सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। अदरवाइज अगर आपको 165 मार्क्स भी है तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। इट इज दैट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन है ये। तो इसमें जो बेस्ट है वही सिलेक्ट हो सकते हैं मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम नॉर्मली दिसंबर में होती है, उसका अलग से नोटिफिकेशन होता है, और जो स्टूडेंट्स 200 में से 170 मार्क्स अचीव करते हैं उन्हीं को मेन एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है। एंड देन कम्स योर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू।
इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जो नेचुरल साइंसेस है उनके एक्सपर्ट्स, एक पैनल होता है और वो आपको सवाल पूछते हैं और आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आपको बताएंगे कि मान लीजिए आप कलेक्टर हैं, आप किसी जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और आपके डिस्ट्रिक्ट में अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है, सुनामी आ जाती है, भूकंप होता है, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे? ओके, तो आपको एक कलेक्टर के हैसियत से आंसर देना है। यू हैव टू आंसर thinking that you are a district collector and you have all the authority with you. Immediate response should be like, I will make my disaster management team alert. जो एक आपदा व्यवस्थापन एक कमिटी होती है उसको मैं तुरंत तैयार रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस तरह से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनको फाइनल रिजल्ट्स में बुलाया जाता है और उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो कुछ डिटेल्स है ये मैं आपको देना चाहता हूँ। यू कैन अप्लाई एज यू वांट, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन। पैंडेमिक कोरोना होने के कारण अभी एवरीथिंग इज ऑनलाइन, नथिंग इज ऑफलाइन। यू वांट टू अप्लाई ऑफलाइन, देन ये उसकी वेबसाइट है। इफ यू वांट टू ऑफलाइन मोड आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, यू कैन सेंड इट ऑन द मेंशन एड्रेस। ये न्यू दिल्ली में है। और इफ यू वांट टू अप्लाई ऑनलाइन, लॉग ऑन टू दिस पर्टिकुलर portal, it's given there. Student, if you want, you can take a screenshot of this and I will go ahead. अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और you know we are running little out of time, so let me go ahead. तो ये एक फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन करना ये एग्जाम्स के लिए। इसका सिलेबस जो है मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर कंपल्सरी पेपर्स। इंग्लिश इज कंपल्सरी लैंग्वेज। इसके साथ आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, मराठी, हिंदी, कन्नड़ा, गुजराती, तमिल, जो आप चाहो वो एक लैंग्वेज इसके साथ रह सकते हो। इसमें कंपल्सरी में ऐसे टाइप भी एक सेक्शन होता है, उसमें आपके विचार, आप हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर ओन थॉट्स, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। देन जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, पेपर 1 to 4, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लेते हो तो वो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर नंबर 1। और उसके साथ SY BA तक आपने जो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका होगा पेपर नंबर 2। ओके, जैसे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो और मेन एग्जाम्स के लिए ये सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो। ओके, आई विल गो अहेड। रेलवेज के भी एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको भारत भ्रमण करना है, अगर आपको पूरा भारत घूमना है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन वर्क फॉर रेलवेज। आप रेलवे में अगर जॉब करते हो तो आपको साल में 2 बार तो मिनिमम फ्री ट्रैवलिंग परमिशन पास मिलता है। आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कहीं भी जा सकते हो। तो ये रेलवे बोर्ड भी अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप डी, क्लास 4 तक अलग अलग पोजीशंस है। इसके लिए भी जो क्लास ग्रुप डी है उसके लिए मिनिमम 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए। ग्रुप ए के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम्स होते हैं। ये अलग बोर्ड है, RRCB, ये कंडक्ट करता है और इस तरह से रेलवे के जॉब्स मिलते हैं। रेलवेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया। सबसे बड़ा सार्वजनिक इसमें अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि आपको मुंबई में ही जॉब मिलेगी, आपको शायद महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगी, साउथ में मिलेगी, नॉर्थ में मिलेगी। ट्रांसफरेबल जॉब्स है स्टूडेंट्स, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। So ये उसकी you can have queries and you can have this particular website जिसमें आप जानकारी पा सकते हो कब कब ये एग्जाम्स होते हैं। Students, I would ask you to take a screenshot of this. आप ये बाद में भी पढ़ सकते हो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखोगे। देन होता है स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो देयर इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिर्फ राज्य स्टेट लेवल की सर्विस है। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 जिले हैं, इसमें आप काम कर सकते हो।
और ये MPSC महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तो इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक के, मतलब कलेक्टर से लेके क्लेरिकल स्टाफ तक के एग्जाम्स है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेके PSI तक के एग्जाम्स है, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स के एग्जाम्स है। सिर्फ इसमें एक होता है, जैसे महाराष्ट्र में ये MPSC है, कर्नाटका में ये कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC होगा, गुजरात में ये GPSC होगा। तो आपको वो लैंग्वेज जानना जरूरी है। अगर आप गुजरात में रहते हो और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देना चाहते हो तो गुजराती आपको लिखने और पढ़ने आनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर मराठी आपको पढ़ने और लिखने आनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं होता है। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप ये बाद में भी और related doubts है, you ask me. एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम 19 साल की उम्र होती है और ओपन कैटेगरी के लिए 33 इयर्स तक आप क्वालिफाई कर सकते हो। जो हैंडीकैप है या SC ST OBC है उसके लिए 35 to 38 इयर्स तक की एज लिमिट होती है। तो ग्रेजुएशन करने के साल में ही, अगर मान लीजिए आप BA में हो, you can same year you can apply for MT examination and there are no restrictions। आप अपनी उम्र के 33, 35 जो भी आप कास्ट कैटेगरी में आते हो तब तक ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। और 2-3 एग्जाम के बाद देने के बाद डेफिनेटली आपको पता चलेगा आप कहाँ कम पढ़ रहे हो। अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन सॉल्व दिस एग्जामिनेशन। आप इससे डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हो, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हो। जो भी स्टेट लेवल के सर्विसेज है आप उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हो। लेट्स गो अहेड। ये सारी सर्विसेज जो अभी मैंने आपको बताई, डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सब रजिस्ट्रार, सेल्स टैक्स ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब एग्जामिनेशंस के तहत आप यहाँ पर काम कर सकते हो। मंत्रालय में अलग अलग सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ये सब एग्जामिनेशन MPSC कंडक्ट करती है। लेट्स प्रोसीड। तो इसका जो शेड्यूल है और इसके जो टाइप्स है सेम UPSC फॉर्मेट पर है ये, लेकिन थोड़ा सा इजी बनता है। जैसे आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, जो मैंने आपको अभी बताया 200 मार्क्स की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद मेन या रिटन एग्जामिनेशन होगी जिसमें आप ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको पूछा जाएगा कि भारत की लोकशाही या लोक व्यवस्था के बारे में आपके विचार, योर थॉट्स, योर व्यूज, योर ओपिनियंस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, और problems faced by Indian government और Indian economy right from 1947 till present। तो इसमें आपको लिखना बहुत है और इसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस, अच्छे शब्दों का चुनाव, गुड वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसके डिटेल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So arts, social sciences, history, geography, social sciences like economics, political science, 30 marks के इसमें questions होंगे। Intelligence test होता है। ओके, आपको कुछ images दिखाई जाती है, उसकी mirror image पूछी जाती है, या there are different questions to check your IQ। आप कितने कम समय में कितनी जल्दी से ये आसान सवाल हल कर सकते हो वो चेक किया जाता है। रिलेशनशिप पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे राधा की बुआ की लड़की मीना के चाचा की लड़की है, तो राधा और मीना में क्या संबंध है। ओके, उस तरीके से सवाल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें एक ट्रिक होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्द से जल्द you can definitely overcome and you can solve these questions within a short period of time। Then होती है main examination। इसका भी ब्रेकअप मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। What is the main examination?
इसमें ये है, इट इज एमपीएससी, तो मराठी के 130 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंग्लिश के 70 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पेपर 1 लैंग्वेज पर आधारित है। ओके, लैंग्वेज आप, there is nothing difficult. Devanagari script है, you can write Devanagari for Hindi as well as for Marathi. Then paper 2 के ये सब topics है, agriculture, okay, then science and engineering, commerce and economic, history, social reforms, panchayati raj institution like जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ये सब पर statistics होता है सिर्फ 5 मार्क्स का, और mental ability होती है, जैसे तरह तरह के साइकोलॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपको दी जाएगी, और इस हिसाब से 200 मार्क्स, 200 मार्क्स एग्जामिनेशन इज द मेन एग्जामिनेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। पर्सनालिटी टेस्ट, और ये लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू, जिसमें आप इंटरव्यू में आपको अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, ओके, या नीति आयोग, इसके बारे में आपके विचार बताइए। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग आया है, तो इसमें असल में व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये आपको बताना है। एंड एवरीथिंग विच इज मेंशन इन द स्लाइड। सो इंटरव्यू इज नॉर्मली फॉर 100 मार्क्स एंड दे टेस्ट योर एबिलिटी। आप कैसे, पर्सनालिटी डजंट मीन कि आप कितने फेयर हो, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है, वो नहीं देखा जाता है। पर्सनालिटी मीनिंग योर ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने अच्छे से जवाब दे सकते हो। कुछ एग्जाम्स के लिए फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे पीएसआई, कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईपीएस, इसके लिए पुलअप्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट्स, रनिंग, ओके, 100 meters in 2.30 minutes, minimum 3 minutes within you have to, or 2.5 minutes you have to complete। इसके अलग से मार्क्स होते हैं। फिजिकल टेस्ट सिर्फ कुछ एग्जाम्स के लिए ही होता है, नॉट फॉर ऑल द एग्जाम्स। पुलिस एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल टेस्ट एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। Interview, so only those who score more than 100 marks qualify for the interview. 50 marks for interview for STI, sales tax inspector and assistant। तो ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स इसका। Yes, you can take a screenshot of this or you can just note it down। MPSC और UPSC के वेबसाइट्स क्या है, ओके, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हैंडसेट, स्मार्ट हैंडसेट होता है, एंड्रॉइड फोन होता है, जियो जिंदाबाद, आप सबके पास वाईफाई या लोकल नेटवर्क होता है। तो इससे आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। www.mpsc.gov, that is government.in, ओके, इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट इसी इसमें आते हैं। देन यूपीएससी का है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यस स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक यहाँ बताया कि एग्जाम क्या है, कैसे कंडक्ट होती है, किन लोगों ने ये एग्जाम्स दी है, या किन लोगों ने इसमें एक मंजिल हासिल की है, एक दे हैव रीच अप टू अ पर्टिकुलर लेवल व्हिच दे ड्रीम्ड ऑफ। ओके, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने अलग अलग हासिलताएं प्राप्त की है अपने लाइफ में। My first student is Petal Gehlot. She is at present Indian Foreign Service. She's working as IFS officer. She was appointed in France. She was appointed in Paris in France as a former second secretary at Embassy of India. तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उसके लिए फॉरेन सर्विसेज होती है। अगर आपको पूरा वर्ल्ड घूमना है, यू शुड गो फॉर IFS। Then second student of mine, ये मेरे पहले बैच के स्टूडेंट्स थे, तो ये नम्रता गांधी, she is at present IS officer, district collector of Gorela Pendra Marwahi। It's in छत्तीसगढ़, ये नया जिला बना है। It is formed on 10th February 2020। पिछले साल ही ये जिला नया बना है, और नए जिले में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, there are no offices and you have to establish everything on your own। You have to make sure that there will be efficiency in the public administration। Then third student of mine is a Pranjal Patil. She is IS.
Students, Pranjal Patil is a visually challenged student. Okay, she is a blind student जो आंखें नहीं है उसको, वो देख नहीं सकती है, बट आज पहली भारत की IAS ऑफिसर है. Okay, at present she is a deputy commissioner Delhi Municipal Corporation. दिल्ली महानगर पालिका में वो deputy commissioner है, और she was also former deputy collector of Ernakulam in Kerala. My fourth student is Aishwarya Dongre. Aishwarya Dongre is IPS officer. पहली एग्जाम में she has cracked the exam. पहले अटेम्प्ट में उसने IPS हासिल किया है, जो IPS हासिल किया है. She is a deputy commissioner of police at Kochi, and before this she was assistant commissioner Trivandrum city cadre की है. She selected Kerala cadre. क्योंकि केरला is a very literate state, 100% literacy है, so it is like, you know, law and order you have to maintain. These students, I'll share some of the photographs of these students. She's Petal Gehlot, okay, IFS officer, अभी दिल्ली में है, and you know उसका एक statement है, you are sitting at home and studying when you know that your friends and colleagues are either moving up the ladder in their career or getting married. It does difficult. इसमें patience चाहिए. Students, अगर आप पहली एक बार एग्जाम दोगे, जरूरी नहीं कि आप ऐश्वर्या डोंगरे की तरह पहली बार एग्जाम क्लियर कर पाओगे. बहुत प्लानिंग चाहिए. जैसे 11th स्टैंडर्ड में ये स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर वी आर प्लानिंग फॉर सिविल सर्विसेज. ओके, तो मैंने पहली बात उनको बताई, जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स है, एनसीईआरटी के बुक्स सब पढ़ना शुरू कर दो. 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सब पढ़ना एनसीईआरटी के बुक्स शुरू कर दो. 11th स्टैंडर्ड में उनकी ये प्लानिंग थी. तो स्टूडेंट्स, आप ये सवाल अपने आप को भी पूछो कि मेरी तैयारी कितनी है. ओके, अगर आपने आज से शुरुआत की है, नो प्रॉब्लम, पैंडेमिक चल रहा है, आपके पास बहुत समय हो सकता है. ओके, शी वाज एन आर्टिस्ट, शी यूज्ड टू प्ले गिटार सो वेल, शी यूज्ड टू सिंग आल्सो, ओपेरा गाती थी, तो बहुत अच्छी तरह से इनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है. Second student of mine, she is at present with the with the Home Minister, and she's working for Indian government now. Okay, international relations improve करने के लिए. My second student is Namrata Gandhi. She is IAS and district collector. Just now I told you about her. उसने पहले जो पहला एग्जाम दिया था, उसे पोस्टल सर्विस मिली थी, पोस्ट ऑफिस. शी नेवर वांटेड टू बी दैट, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी. क्या आप बिलीव कर सकते हो? पोस्टल सर्विस, पोस्ट मास्टर जनरल, टॉप मोस्ट करियर होता है, बट उसे IAS ही बनना था, कलेक्टर ही बनना था. नाउ दिस इज प्रांजल पाटिल, हु इज विजुअली चैलेंज, ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, फिर भी देश की पहली एक महिला नेत्रहीन ऑफिसर बनी है. अगर प्रांजल जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्यों नहीं? ये सवाल आज यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ. वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, and you know what, one statement of her, we should never be defeated and never give up. With our efforts we will always be able to achieve what we desire. तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें उम्मीद नहीं हारनी है. आज नहीं तो कल मैं डेफिनेटली ऑफिसर बनूंगी, ये इसका सपना था. पहली एग्जाम में प्रांजल पाटिल को रेलवे सर्विसेज मिली थी. ओके, रेलवे डिपार्टमेंट ने उसे रिफ्यूज किया. उन्होंने कहा कि आज तक नेत्रहीन, विजुअली चैलेंज, ब्लाइंड हमारे पास नहीं है, तो हम आपको नहीं रख सकते हैं. ओके, फिर भी वो हौसला नहीं हारी. ओके, शी डिड नॉट गिव अप, शी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, शी सिक्योर्ड द मैक्सिमम स्कोर एंड शी गॉट IAS. तो IAS, IPS, IFS, रेलवे सर्विसेज अलग अलग चॉइसेस होते हैं और मार्क्स पे डिपेंड करता है. शी इज IAS ऑफिसर एट प्रेजेंट. My fourth student, this is her latest photograph when she came to college, and she is IPS officer Miss Aishwarya Dongre. पहली अटेम्प्ट में उसने पुलिस सर्विस कैप्चर की है. स्टूडेंट्स, आप अगर UPSC क्रैक करते हो, ये इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग देता है. आप एग्जाम क्रैक करने के बाद सीधा ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते हो. देयर इज 1 year ट्रेनिंग. सो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मसूरी में है. यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस and well nurtured in the mountains. बहुत अच्छी जगह पर है. यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. जो IPS होते हैं, इनके लिए नेशनल पुलिस एकेडमी है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है ये.
वहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। स्टूडेंट्स, सीएसटी स्टेशन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, उसके बाहर पहली जो बिल्डिंग कैनन पाव भाजी की तरफ आप जाते हो, वहां पर है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स। तो ये इंस्टीट्यूट है जो आप आईपीएस आईएएस बनने के पहले आपको ये ट्रेनिंग देता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसकी एंट्रेंस टेस्ट होती है। ये आप क्वालिफाई करोगे, आपको 1 साल का रहना खाना बुक्स लेक्चर्स पूरा फ्री होता है। एंड ये मुंबई सीएसटी में है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। पिछले महीने इसकी एंट्रेंस टेस्ट हो चुकी है। ये ऐश्वर्या डोंगरे की मार्कशीट है स्टूडेंट। यूपीएससी एग्जाम आईपीएस के लिए ऐसे पेपर 1 में शी स्कोर्ड 124, जनरल स्टडीज में 113 और उसके पर्सनालिटी टेस्ट में शी अचीव 157। सो टोटल रैंकिंग वाज 1023 एंड शी वांटेड आईपीएस, she became IPS. So ये एक नतीजा होता है when you work very hard. So student, let's come for the tips and the techniques. Successful होने का मंत्र क्या है? आप किस तरह से ये पढ़ाई करोगे? ये ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आपने बस बुक उठा ली, एक बुक पढ़ लिए और जाके एग्जाम दे दिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स नहीं है, आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, आपको 100 नहीं 200% देना है, डेडिकेट होना है। बस आपके सामने वो एक ही चीज दिखनी चाहिए, आई वांट टू बी ऑफिसर। आप अच्छे कॉलेज में हो, आपके बहुत सारे प्रोफेसर एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो एंड दे आर सो विलिंग टू हेल्प यू। आपको सिर्फ उनके पास पहुंचना है। पहली बात होती है आपको हार्डवर्क करना है। मिनिमम प्रांजल है, ऐश्वर्या है, पेटल है, नम्रता है, ये लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्टडी करते थे। ऑफकोर्स बीच में ब्रेक्स लेते थे 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन 10 घंटे 12 घंटे स्टडी करना। हार्डवर्क चाहिए। नो द सिलेबस, सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, इंग्लिश ग्रामर में क्या आने वाला है, पहले ये सब आप जान लो। ये सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देन होता है राइट गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। ओके, गाइडेंस आपको कम समय में एक सक्सेस की तरफ पहुंचा सकता है। यू नीड दैट सपोर्ट। देन प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट लेनी चाहिए कि जिस तरीके से आप जल्द से जल्द आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट। आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी होता है। 120 मिनट्स सिर्फ 2 घंटे है और 200 सवाल है। 2 घंटे और 200 सवाल, so 2 hours, and within 2 hours you have to qualify all 200 questions. What are the other tips? Set a target. मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये टारगेट आप पहले सेट कर लो। ओके, मराठी में एक कहावत है की जर तुम्ही सिंहाची शिकार करायला गेला तर ससा तरी नक्की मिळतो। अगर आपकी प्रेपरेशन शेर को मारने जैसे है, लायन टाइगर को मारने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप सिर्फ लाठी काठी लेके नहीं जाओगे। अगर आपको टाइगर की शिकार करनी है, उसे मारना है, तो आपको बहुत सारे वेपन्स, हथियार लेके जाने पड़ेंगे। अगर टाइगर नहीं मिला आपको, तो एटलीस्ट आपको खरगोश मिलेगा, हिरन मिलेगा। ओके, सो एम हाई, वर्क फॉर हाई टारगेट सो दैट यू कैन अचीव। पहले अटेम्प्ट में आप क्लास 1 नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम, क्लास 2 तो बनोगे, ऑफिसर तो बनोगे। ये ख्वाहिश दिल में हमेशा होनी चाहिए। मेक अ टाइम टेबल। स्टूडेंट्स, आई वुडंट से ओनली मेक अ टाइम टेबल, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, गिव मैक्सिमम इनपुट्स, गिव मैक्सिमम हार्डवर्क। ये मौका फिर नहीं आता है। आज आपकी एज है स्टूडेंट्स, ओके, आप बन सकते हो। ओके, एक बार टाइम चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये अगले 5 साल, बिलीव मी, कमिंग 5 years, if you work hard, your remaining 50 years will be at ease, at very comfort. 5 साल मेहनत करो, अभी के 5 साल मेहनत करो, आगे के 50 साल आप एक किंग जैसे, एक राजा महाराजा जैसी जिंदगी बिता सकते हो। अगर आप ये 5 सालों में सिर्फ आराम करोगे, घूमोगे फिरोगे, अगले जिंदगी के 50 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो चॉइस इज योर्स। ये 5 साल में मेहनत करनी है और आगे के 50 साल आराम से गुजारना है, या आगे जाके आपको मेहनत करनी है और ये 5 साल आराम करना है। चॉइस इज योर स्टूडेंट्स।
टाइम टेबल बनाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ बनाने से कुछ फायदा नहीं है, उसमें अमल होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आइडेंटिफाई योर वीकनेस, क्या वीकनेस है आपके? शायद मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, ये मेरा वीकनेस है, उस पर तैयारी रखो, रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। ओके, अर्ली मॉर्निंग इफ यू स्टार्ट, डेफिनेटली यू हैव मोर टाइम, पूरा दिन आपके पास है। आपके वीक पॉइंट क्या है? आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, ओके, मोबाइल यूज करो लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करो। ज्यादा से ज्यादा एमपीएससी यूपीएससी की अभी तो यूट्यूब पर भी उसके इंटरव्यूज तक अवेलेबल है, तो आप अच्छा उसका इस्तेमाल करो। मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेक नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। सिर्फ जेरोक्स लोगे, सिर्फ बुक्स पढ़ोगे, उससे कुछ नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, जब ये नोट्स बनाने की बात आती है तो आपको बहुत सारे बुक्स है। कैन यू सी ऑल दिस बुक? ये पढ़ो, विंग्स ऑफ फायर। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, कैन यू सी दिस? कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, विश्वास नांगरे पाटिल आईपीएस ऑफिसर है, ये 2 बुक्स है, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, वो पढ़ो। ओके, राकेश मरिया ऑटोबायोग्राफी दी है उन्होंने। ओके, लेट मी से इट नाउ। क्या बहुत सारे बुक्स है स्टूडेंट्स, उसमें उनके एक्सपीरियंस है, कैसे उन्होंने मेहनत की। ओके, अरुणिमा सिन्हा का है, जो जिस ट्रेन एक्सीडेंट में जिसकी टांगे कट चुकी थी। अरुणिमा सिन्हा वाज अ नेशनल एथलीट, ओके, जो नेशनल लेवल की रनर थी, एथलीट थी, और कुछ गुंडे आए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में रात के समय, और उसकी जो सोने की चेन है वो खींचना चाहिए, उसने शी फाइट बैक विद देम, तो उन्होंने उसको चलती ट्रेन में से बाहर फेंक दिया, और सामने उसी समय दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसके दोनों पैर कट चुके। शी हैज अचीव्ड माउंट एवरेस्ट, ओके, फिर भी वो एम्पुटेड फुट, जयपुर फुट लगा के उसने माउंट एवरेस्ट हासिल किया। तो आप तो बहुत अच्छे हो, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपके लिए ये चैलेंजेस बहुत छोटे हैं स्टूडेंट्स। रिवाइज एंड रिवाइज, सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 बजे एग्जाम है, वो 2:45 बजे तक रिवाइज करते बैठते हैं। ये तरीके से आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे, आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, ओके, आपके कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर एक्सपर्ट्स है, कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई इंग्लिश में है, कोई पॉलिटिकल साइंस में है, कोई हिस्ट्री में है, उनसे गाइडेंस लो, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। दे विल बी एवर रेडी टू हेल्प यू, बिकॉज आप उनके स्टूडेंट्स हो। ये बहुत फक्र की बात होती है, इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राउड फॉर इवन देम, फॉर योर टीचर्स। आज के हालात में टीचर्स, डॉक्टर्स, यही सर्विसेज ऐसी हैं जो सेल्फलेस है, जो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये सब टिप्स है, इनको आप प्रैक्टिस करो, इनकी सहायता से यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने बोला, एनसीईआरटी बुक्स, नेशनल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके बुक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ये आपको सेकंड हैंड में भी मिलेंगे, तो भी आप ले लो, 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक। ओके, सीबीएसई बोर्ड्स के बुक्स होते हैं, एनसीईआरटी देता है, आप प्रेफर करो। तो गोल एंड प्लान, दैट इज द स्टेज 1। पहले आपका गोल, आपको कहाँ टारगेट करना है वो डिसाइड करो। विजुअलाइज योरसेल्फ कि यस, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये विजुअलाइज करो, उसके लिए वैसी मेहनत करो। स्टेज 2, इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू वर्क टू अचीव देम। ओके, Sachin Tendulkar had lot of dreams. He wanted to win, World Cup for India. He worked hard for it. Okay, he gave 100%. He was never involved in cricket betting. He was never involved in any celebrity hacks like, love affairs and all that. He lived very simple life. Only focus on cricket. तो इस तरह से implement करो, उस पर अमल करो. And these are the other tips. You can take a screenshot of this. क्रिएटिंग रूटीन, ओके, एक पक्का रूटीन होना चाहिए। मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मतलब उठना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 7 o'clock आई विल गेट अप एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग, ये होना चाहिए। आप कितना समय ज्यादा दे पाओगे उसका आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और उस तरह से यू कैन डेफिनेटली वर्क हार्ड।
सो क्रिएट योर ओन रूटीन, खुद का टाइम टेबल बनाओ. ओके, मुझे अगर मोबाइल सिर्फ 12 और 12:30 के बीच में यूज करना है, मैं तभी यूज करूंगा. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक सिंपल सा फोन रखते हैं, दैट्स इट. नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखते हैं. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ पढ़ाई करोगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, एग्जाम के दिन अगर आप बीमार हो गए, आपकी पूरी साल की मेहनत बेकार जाएगी. सो यू हैव टू केयर योर ओन सेल्फ. और अभी पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी हेल्दी. अच्छा खाना खाओ. ओके, अच्छा खाना डजंट मीन दैट आपको बहुत तरह तरह के वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई करने हैं. जो हेल्दी खाना है, घर का खाना है, यू शुड गिव प्रायोरिटी फॉर इट. ओके, जंक फूड अवॉइड करो. ओके, लॉन्ग टर्म उसके बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं. सादा साफ पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीने की भी कोई जरूरत नहीं है. हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. रिव्यू योरसेल्फ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, मैंने कितना पढ़ा, मुझे कितना आ रहा है. अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको भी कुछ हेल्प करेंगे. ओके, जो आपको इम्प्रूव करेंगे, आपको गाइड करेंगे. आपके साथ यू कैन डिस्कस वेरियस इश्यूज कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पैंडेमिक की सिचुएशन क्या है, इजराइल ने कैसे ये पैंडेमिक कंट्रोल किया है. ऐसी बातें डिस्कस करो. ओके, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी. आप सिर्फ बोलोगे नहीं मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है, फाइन, लोकल लैंग्वेजेस होनी चाहिए. इंग्लिश इज ऑल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज. पूरे वर्ल्ड का 80% लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर इंग्लिश में अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, 80%. तो इंग्लिश वोकैबुलरी और कमांड ओवर द लैंग्वेज हैज टू बी देयर. Then it gives you lot of confidence. Practice makes one perfect. तो English speaking हमेशा होनी चाहिए. घर में शुरुआत करो. Thank you, sorry, please, I will go, I will come. ऐसे शब्दों से शुरू करो, but you keep on practicing. There are many guidelines. You follow them. Be confident. Okay. Be around with like-minded people जो सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छी संगत में रहो, अच्छे गुरुजन, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में रहो. डेफिनेटली आप आगे जाओगे, पीछे नहीं आओगे. बुरी संगत से बचो. जो बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन छोड़ दो, तभी आपकी जिंदगी बनेगी. सिर्फ मोबाइल आपको कुछ नहीं देगा अलावा एंटरटेनमेंट के. अभी एंटरटेनमेंट करोगे, आगे के 50 साल आपको कुछ नहीं सक्सेस मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अभी मेहनत करो, आगे के 50 साल यू कैन स्टे हैप्पीली, यू कैन लिव हैप्पीली. स्टूडेंट, ये टारगेट होना चाहिए. या दिस शुड बी योर टारगेट कि ये गाड़ी एक दिन मुझे लेके जाएगी. अभी तो इसमें टोयोटा कॉलिस और टोयोटा इनोवा और बहुत सारे हाई एंड फॉर्च्यूनर वगैरह मॉडल आए हैं. दिस शुड बी योर ड्रीम, दिस शुड बी योर टारगेट. इस गाड़ी में मुझे बैठना है, ये ड्रीम आप देखो और इसे डेफिनेटली हासिल करो. मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ है. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड at the end I will say my final suggestion, prepare well. अच्छी तैयारी करो, practice well. आप अच्छा परिश्रम करो, practice करो, perform well. अच्छी तरीके से एग्जाम दो, position well in job and life. एक अच्छा मौका हासिल कर लो लाइफ में. क्यों? क्योंकि success is waiting for you. Okay, success आपकी राह देख रहा है. Okay, success is waiting for you, so you have to work very hard. Yeah. With this, I will end the part of this. Thank you so much everyone for patiently listening to this, and I hope you all will definitely work hard. आपके माँ बाप का सपना, आपके पेरेंट्स का सपना आपको पूरा करना है. It is your responsibility. I am done with this. Can I have certain questions or doubts, difficulties, queries? Come on, NKES college students. Any further questions? मुझे लगता है 2 कंडीशंस में क्वेश्चंस या डाउट्स नहीं होते हैं. वन इज व्हेन यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. जब आपको पूरा समझ में आ गया तो डाउट्स नहीं है, पता है आपको क्या करना है क्या नहीं. सेकंड कंडीशन इज आपको कुछ भी नहीं समझा है तो देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स. सो व्हाट टू आस्क? सो आई assume the first condition that you all have understood everything. Students, if you have any questions, please ask to sir. Yes, Now, there this is a meeting is question. open.
Yeah. In Yeah. chat box, there is a question. Sir, for UPSC, we have to complete graduation. Yes. UPSC, MPSC class 1 की पोजीशन के लिए ग्रेजुएशन होना, BA, BCom, BSc, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है. Yes. Rohan, your question is answered. टाइम मैनेजमेंट का सवाल मुझे पूछा गया है. सो यस, टाइम मैनेजमेंट आपको आपका अवेलेबल टाइम देखना है कि सुबह अगर आप 6 बजे उठोगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, 7 बजे उठोगे तो 1 घंटा कम मिलेगा. कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रीडिंग होगी. ज्यादा फोकस रहोगे तो कम समय में यू कैन डेफिनेटली मैनेज योर टाइम वेरी वेल. प्रिपेयर अ शेड्यूल. आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, रफ टाइम टेबल बनाओ कि सुबह अगर 6 बजे मैं उठूंगा तो मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा. ओके, 1 घंटा में न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैगजीन्स पढ़ूंगा. अभी तो बहुत सारे आपके मोबाइल में भी आपको न्यूज़ अवेलेबल होते हैं. रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए. सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टीवी में न्यूज़ देखने से कुछ नहीं होगा. आपकी एबिलिटी रीडिंग राइटिंग से होती है. तो रीड द न्यूज़पेपर, डोंट वॉच द न्यूज़. और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स बहुत अलग अलग तरह की न्यूज़ देते हैं. दैट इज नॉट गुड. टाइम मैनेजमेंट, यू विल हैव टू प्रिपेयर टाइम टेबल, इम्प्लीमेंट करो. अगर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा, यू हैव अचीव टाइम मैनेजमेंट. इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. या रेलवे बोर्ड के लिए भी देखो, क्लास डी, एक सवाल आया है कि रेलवे बोर्ड्स के लिए भी ग्रेजुएशन नहीं. कुछ रेलवे के एग्जाम्स जो क्लास डी है, ओके, उसमें आपको 12th स्टैंडर्ड भी चलता है. ओके, 12th स्टैंडर्ड में आप एंट्री कर सकते हो वो जॉब्स में. हायर पोजीशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए. बट मुझे ऐसे लगता है कि जॉब मार्केट इतनी बढ़ चुकी है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड कंपटीशन, तो शायद हर जगह वो अभी ग्रेजुएशन ही रखेंगे. Thank you. I can read so many good, positive feedback that I have explained it very well, and therefore there are no doubts. Student, ये आपका और आपके पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का सपना है, इसे आपको पूरा करना है. और ये एक जिंदगी आपको इसी के लिए मिली है. बस ये सोच के if you go ahead, definitely you will have a lot of success. Clear up UPSC, how much attempt we have. ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 4 अटेम्प्ट्स है. ओके, तो जब तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते हो, अटेम्प्ट जल्दबाजी में मत देना. ओके, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल स्टडी करो, फिर पहला अटेम्प्ट दो. इसके बाद एनालाइज करो कहाँ तक आप पहुंच चुके हो. फिर उसके बाद तो 4 अटेम्प्ट्स यूपीएससी के हैं. एमपीएससी, रेलवे, बैंक, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है. आप अपनी 33 इयर्स, 35, 38 इयर्स, जिस कैटेगरी में आप हो उस तरह से आप अटेम्प्ट दे सकते हो. 10 साल मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पोजीशन आपको मिल ही जाएगी. If you work continuously hard for 10 years, you will definitely achieve not class 1, at least class 2. फिर प्रमोशन से आप class 1 बन सकते हो. So sky is the limit, students. Sky is the limit. Okay. Any other doubts? Yes. Yes. Please. I want to go in IT field. Which competitive exam I will give? Repeat your question. Can you please repeat? Hello. Sir, she wants to ask. Yeah. I am from IT field. So what exam is there that I can give from IT field? section. Okay. There are many technical posts for railways in the IT sector. Okay. Majority of the IT sector comes under Indian Engineering Services, IES, जिसमें minimum B, Bachelor of Engineering, is the minimum qualification. But then there are supplementary services also in the railway board. जैसे for example, data sheets रखनी होती है, salary slips रखनी होती है,
तो उसके लिए आईटी इंजीनियर के जैसे क्वालिफाइड भी ना हो, फिर भी सिर्फ आईटी सेक्टर में उन्होंने अपना करियर किया है, they are eligible for those examination, so they can go ahead with that. Students, any other question from your side? So may I ask one question, sir? Yes, sir, please go So ahead. now it's coming to my mind. Yeah. Just now it clicks. So for this exam, UPSC exam, so can we give this exam in other than English language? For example, suppose I want to give this UPSC main exam in Marathi, for example, any other language, Okay. Marathi, Hindi, whatever, and even interview. Can I give interview in English, Marathi language or Hindi language? Yes sir, it's a very good question. पहले जब यूपीएससी एग्जाम होती थी, आपके सभी सब्जेक्ट के चॉइसेस हिंदी छोड़ के या एक रीजनल लैंग्वेज छोड़ के पूरे इंग्लिश में होते थे, इंटरव्यू पैनल भी इंग्लिश में होता था। लेकिन कुछ सालों से यूपीएससी ने रियलाइज किया कि नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट, आपके पास ज्ञान होना, नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट, आप लैंग्वेज बैरियर में ना अटके, इसीलिए उन्होंने अभी हिंदी में भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है, मराठी, कन्नड़ा, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, गुजराती में भी उसके इंटरव्यू होते हैं। और अगर आप पूरी एग्जाम आपके मदर टंग में देना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड एक्सेप्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। वो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर छोड़ के अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री किया है, आपको गुजराती मीडियम में देना है, आप दे सकते हो। अगर आपको पूरा इंटरव्यू आपके मदर टंग में चाहिए, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम या और किसी लैंग्वेज में चाहिए, यू कैन अप्लाई फॉर इट। लेकिन उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल होंगे, वो इंग्लिश पैनल आपको इंग्लिश में सवाल पूछेगा, बाकी पूरे सवाल आपको रीजनल लैंग्वेज में यूपीएससी के लेवल तक होते हैं। सो दे हैव अलाउड इट and you can give your answers in your mother tongue, your vernacular, or your regional language. So that is allowed, sir. Okay, thank you, sir. Students, any other question? Yes. Actually, I'm not able to see this message box. I Actually, can see so the chat box. They all are saying that you have explained if are solved, so there are no questions. Thank you, sir. I'm actually speechless. So your speech was really motivational for students, and definitely I feel that definitely they will get this benefit from this web. Thank you. You have touched Small college, but you have a lot of input. Your staff is dedicated, and everybody I saw in the participants, even आपकी उनका गाइडेंस लो, एक्सपर्ट बनो, और जब सक्सेसफुल होंगे तो अपनी कॉलेज को और आपके टीचर्स को विजिट डेफिनेटली करना। This opportunity. Personal thanks to you, Pramod. So thank you, everyone. It's my pleasure, sir. Thank you, sir. Sir, actually, we are a big institute. We have from primary section to we have MBA streams. Okay, so from primary section KG to PG, we have all this. So now we are doing that. Okay, thank you very much, sir. Once again. Now I would like to invite from management our respected ma'am, Padmaja madam, to say few words to students. Padmaja ma'am. Over to you, Padmaja ma'am. Hello, am I audible? Yes, Yes, yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible.
Yeah, it was a very informative session. However, I would have preferred that you touched other topics also, many other scope and some other areas other than the government services exams. These students, I guess, they are mostly the participant level. I think was the 12 junior college students. Yes, ma'am. Junior college students. So they would be more interested in doing something after the 12. But however, your speech was very clear, your subject was thorough, and the way you tried to convince the student was also very, I'm sure they must have found it very interesting. So can we have a session next time, Mr. Praveen, about other opportunities, career opportunities in the maybe Yes, the IT, definitely, ma'am. I would like the to have it. the media industry, journalism, something which is, something which is new and upcoming, especially in this kind of today's kind of world where these things are a little bit only very sincere and as we know from our generation, only the sincere and the very students who are very much interested in doing these things will go ahead. But there are a whole lot of other students who would like to do a variety of other things, something in the commercial art, in the advertising field. Yes. So we would like you to do a session on that too some other time. Yes, Padmaja madam, it's a very good suggestion. I have actually 50 more slides to show related with the CLAT, related with the 12th standard exam, after careers after 12th standard. But then time constraint, I couldn't, mention it. So yes, there are many career opportunities, and definitely whenever time permits, we will again meet up, and I will focus more on, the fast career opportunities, especially after the 12th standard. Thank you so much. Thank you so much. Yes. I think you can coordinate with our principal. They will make all the necessary arrangements. In fact, you can have these sessions not as a one-to-one thing. You can, I was about to suggest it to them also that you can have it maybe once in 2 months, 3 months. Now, because of the pandemic, most of the students have got no opportunity to go anywhere. To keep them engaged is a big task. So we can do these sessions like once in 2 months. You come up with something different. We can do that. Definitely. It's a very good suggestion, ma'am. Thank you, and thank you for all the efforts. Very well, well conducted. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I think we are good for now. Thank you, everyone. It was a pleasure being with you all and attending this insightful session, informative session. Now, for formal vote of thanks, I would like to invite our Professor, my colleague, Shiv Kumar Pujari, sir. Sir, over to you. Pujari, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Good afternoon, everyone. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this special occasion. I start this vote of thanks with the quotes, "We should never be defeated and never give up. With our efforts, we'll always be able to achieve that we desire." This is one of the students, Sir's student Pranjan. This is what I got from Sir. I kept my DP as soon as I got this on the screen. With this, I start my vote of thanks. First and foremost, I thank our special guest of today's webinar, Professor Praveen Salunke, for sparing his valuable time with us and enlightening with us guidance and knowledge about building a career through competitive exam. He explained importance of exam, different types of exam, dedication and discipline, importance of these things to achieve your dreams, your target. It was very interesting, sir. It was very informative. I'm pretty sure the information that Sir shared with us will definitely help our student to make up their career as it opens the door of competitive world of them. आणि जसं तुम्ही म्हटलात सर की मी तर म्हणतो की सर जेव्हा शिक्षक तुमच्यासारखा असेल, गुरु तुमच्यासारखा असेल, तर विद्यार्थी पहिल्यांदाच सिंहाचा शिकार नक्कीच करेल. ससा तर सोडा, पहिल्यांदाच सिंहाचा शिकार करेल. आणि मला खात्री आहे तुमच्या या वेबिनार नंतर माझेही मुलं एनकेएसचे स्टुडंट आपली तयारी सुरू करणारच आहेत. Thank you, sir. So on behalf of NKS Junior College, the management, staff, and on behalf of all my dear students, once again, and thank Professor Praveen Salunke for his presence and guidance for the today's webinar. Thank you very much, sir. And even it's my privilege that today not even Salunke, sir, but his colleagues are also present here. We are grateful, sir. So I'm special thank
to Professor Sachin Hegde, Professor Kamlesh Kadam, Professor Kailash Jain, and not only staff, I am happy, sir, you are also accompanied with your brother, Mr. Kiran Salunke. So very special thank to him also. Next, I like to extend my generous thanks to the management of NKS Group of Institution, each and every committee member. We are big just because of them here. Thank you, committee member. Thank you, Padmaja ma'am. And special thanks to my source of inspiration, Saroja ma'am, and respected principal, Uma madam. Their guidance and support always encourage us. Thank you very much, ma'am. My heartfelt thanks to all the staff members, teachers of all the sections, arts, commerce, and science, including our respected supervisor, Mr. Kukken, sir. Thank you very much, sir. A special thanks to Mr. Pramod, my colleague, who has taken this initiative of conducting this webinar under the guidance of our principal, madam. And I'll be biased if I won't mention Sanjay Pandav sir's name. Yeah, our IT teacher. Yes. He is the man behind conducting our virtual programs like seminar, webinar, and online teaching. Without him, it is not possible. Thank you so much, Pandav sir. Last but not the least, the target audience, today's target audience of this webinar, my dearest student. Thank you, student. Thank you very much for attention and cooperation for making this webinar a resounding success. Finally, I thank you all of you for your presence and attention. Sorry, I forgot. There are students of Xavier's also. So very warm thanks to each and everyone, all the students of Xavier. We are very thankful for your presence. So see you soon. Next time, as Padmaja madam said, you plan something else for us next time, sir. आम्ही तुमची खूप वाट बघू. नवीन काय तुम्ही आम्हाला जे काही आहे करंट सिच्युएशन मध्ये जे काय पॉसिबिलिटीज आहे त्यासाठी तुम्ही आम्हाला गाईड कराल, आमच्या मुलांना गाईड कराल, तर अपेक्षा करतो लवकरच तुमची भेट होईल. So once again, thank you each and everyone. See you soon, students. Next Friday for the next Friday Fest. So till then, enjoy, be safe, be at home. Have a great day. Thank you. Thank you, everyone. So all the best to all the participants, especially students, and hope to see you soon. So thank you, everybody. Pramod sir, shall I end the meeting?